Faraday law. It is of two types. One is Faraday first law and Faraday second law. Faraday first law in which amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the charge. Here, amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the charge. That is, M is the amount of substance deposited or liberated is proportional to the charge, that is Q. And where we know that since Q is equal to I into T, current and time, so that here amount of substance deposited or liberated is directly proportional to IT. Then M is equal to ZIT, where Z is a equivalent constant, right? Z is a equivalent constant, I is a current and T is a time, and M is the amount of substance deposited. Here, when I is 1 ampere, time is 1 second, then amount of substance is deposited is equal to the equivalent weight of substance. Now, Faraday second law. In second law, here more than two cells are connected in a series. दो सेल से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड filled with electrode and electrolyte. Now, suppose this is a zinc electrode, here silver electrode, and here copper electrode. 3 electrode and respective electrolyte: zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate, right? And these cells are connected through the salt bridge, right? These are connected through the salt bridge. Now, here with this cell are connected in a series, and here we will relate amount of substance deposited, or liberated is proportional to equivalent weight of substance. Now, amount of substance deposited or liberated is proportional to the equivalent weight of substance or whatever electrolyte is there. So here, first, amount of zinc deposited or liberated is proportional to equivalent weight of zinc. Second, amount of silver deposited or liberated is proportional to equivalent weight of silver. Third electrolyte or electrode, amount of copper deposited is proportional to equivalent weight of copper. So these three electrode and electrolyte connected in a series, their relation is amount of substance deposited or liberated is proportional to the respective electrode. So here on relating 1, 2, 3, we have relation. Now
when we relate amount of zinc deposited is directly proportional to the equivalent weight of zinc to the amount of silver deposited is also proportional to, means here we will equate it equal to the equivalent weight of silver, right? This is equation 1. So same way we are relating amount of silver deposited to the amount of कॉपर डिपॉजिटेड. यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड सेल को रिलेट किया, यहाँ पे सेकंड और थर्ड को, इक्वल टू वो उसके रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ये सेकंड है. अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम रिलेट करते हैं तो हमें मिलेगा रिलेशन अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड or to the amount of copper deposited is equal to equivalent weight of zinc to the equivalent weight of copper. ये हमें रिलेशन मिलता है फर्स्ट और थर्ड में. यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला है बेटा वो रिलेशन है फर्स्ट इनका, मतलब यहाँ पे कॉपर और ये सिल्वर, ये कॉपर था, सॉरी ये जिंक है और ये सिल्वर, इसको रिलेट किया. और यहाँ पे हमने रिलेट किया सिल्वर और ये कॉपर, इसका रिलेशन. और यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिलेशन फर्स्ट और थर्ड, दैट इज़ अमाउंट ऑफ जिंक और अमाउंट ऑफ कॉपर. तो इस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ इज़ दैट व्हेन मोर देन 2 सेल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, जब 2 से ज़्यादा सेल को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो जो भी यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो इस इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. सिमिलरली इसका भी वही है, इसका भी वही है. अब फर्स्ट और सेकेंड को हम रिलेट करते हैं तो हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज जिंक डिपॉजिटेड to the amount of substance deposited silver is equal to equivalent weight of zinc and equivalent weight of ये. और फिर इसको और इसको रिलेट करेंगे तो हमें amount of substance silver deposited is equal to the equivalent weight of silver and amount of substance copper deposited is equal to the equivalent weight of copper. तो अब इन दोनों से हम जब रिलेट करेंगे तो बेटा ये अपने आप देखो, ये यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये दोनों में कॉमन है. तो अगर हम इसको दोनों में मिल रहा है, यहाँ पे भी रिलेट हो रहा है, यहाँ पे भी रिलेट हो रहा है, तो इसको अगर हम हटा दें तो हमें रिलेशन किस में मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑफ जिंक टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक एज वेल एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. इसका रेशियो मिलता है, राइट. नाउ अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो टॉपिक है कंडक्टेंस. ये कंडक्टेंस जो है ये क्लासीफाई होता है 2 टाइप का. एक होता है मोलर कंडक्टेंस, एक मोलर कंडक्टेंस और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा एम और इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू, राइट. अब यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस 1 मोलर सब्सटेंस
diluted at 1 molar substance diluted at infinite dilution, its conductance is equal to sum of its ion and multiple of the valencies respectively। मतलब एक मोलर सब्सटेंस होगा, उसको डाइल्यूट करिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इट्स आयन एंड इट्स वैलेंसी। कैसे, देखिए ये है मोलर कंडक्टेंस कोई भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ रिप्रेजेंट इनफाइनाइट इज इक्वल टू जो भी आयन्स होगा एट इनफाइनाइट पे वो पॉजिटिव प्लस जो भी आयन होगा इनफाइनाइट पे वो नेगेटिव आयन, राइट। ये और यही मल्टीपल होगा देयर वैलेंसी न्यू प्लस एंड न्यू माइनस। हियर न्यू प्लस एंड न्यू माइनस आर वैलेंसी, राइट। ये होता है मोलर कंडक्टेंस, 1 मोलर सब्सटेंस डाइल्यूटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर उसके बाद होगा क्या, उसका जो कंडक्टेंस होगा सम ऑफ इट्स आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मल्टीपल ऑफ देयर वैलेंसी रेस्पेक्टिवली, राइट। फिर इसके बाद आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर इसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट weight of substance diluted at infinite dilution, its conductance is equal to sum of its आयन। खाली वो उसके आयन की होगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस ये रहा इक्विवेलेंट, चाहे नॉट लिखिए और इट इज़ रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, ये बराबर होगा बेटा। सिर्फ जब उसको डाइल्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट पे ये पॉजिटिव और इनफाइनाइट पे जो भी आयन नेगेटिव हो, इन्हीं को सम कर दो, वही होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। ये रहा। और इसी को हम लोग इस तरह भी कैलकुलेट कर देते हैं कि जो अब ये इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट आएगा कहाँ से, वो आता है मोलारिटी नॉर्मेलिटी से, और मोलारिटीज़ क्या आता है, मोलर कंडक्टेंस। तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या होता है? कोलरॉस लॉ होता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज applicable to the weak electrolyte। weak electrolyte, ये कोलरॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन weak electrolyte diluted at infinite dilution, its conductance are of 2 type as we discussed earlier, that is one is molar conductance, second one is equivalent conductance।
अब मोलर कंडक्टेंस में लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में लैम्डा इक्यू, और वही नॉट से रिप्रेजेंट, क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए बेटा नॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है या इनफाइनाइट साइन से रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से ये कोलब्रुक लॉ एप्लीकेबल होता है। अब इसी का एक एग्जांपल देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इस पर हम अप्लाई करते हैं बेटा तो ये डिसोसिएट होगा उसके आयन में, CH3COO माइनस NH+। अब यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस अप्लाई करें ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, ये हो जाएगा सम ऑफ, ये रहा एसीटेट आयन प्लस ये रहा H+ आयन, लेकिन ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होगा, ये रहा। अब ये क्या हुआ, दिस इज मोलर है तो यहाँ पे वैलेंसी मतलब ये न्यू माइनस और ये न्यू प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। यही अगर इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ इक्विवेलेंट लिखा, ये इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखोगे आप CH3COO माइनस और ये प्लस H+। अब देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वैलेंसी से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये इक्विवेलेंट हो गया और ये आपका मोलर हो गया, राइट। तो इस तरह से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस, ये वैलेंसी होती है ना, इस तरह से। और आप इसी तरह से वैलेंसी हम लोग लिखा जाता है। इज इट क्लियर? जो मोलर होगा उसकी वैलेंसी उससे मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज इक्विवेलेंट में वैलेंसी नहीं होती, सीधे उसका जो भी आयंस होगा वही उसका सम कर देंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।